Hello students, welcome to my class. Today we will going to study about the types of asexual reproduction. As we studied earlier in the previous video that there are two types of reproduction. One is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. In asexual reproduction, only single parent is involved. Here no gamete formation takes place and there is no fertilization occur. In this type of asexual reproduction, the new young one that is produced during the asexual reproduction is almost identical to their parent. There is very little chance of variation that may be occurred during the asexual reproduction. There are different ways in which asexual reproduction is carried on. Here we are going to study about the different processes that involve in asexual reproduction, which are studied under the heading of type of asexual reproduction. First type of asexual reproduction is fission. Another one is budding. Third one is fragmentation. Next is the fourth one is regeneration. Next is spore formation. That is fifth number. And last sixth number is vegetative propagation. These are 6 different ways in which asexual reproduction occurs. Fission. As per name suggests, fission means breaking. Okay. When a cell breaks down into two or many cells, this type of reproduction is called fission asexual reproduction. It is of two types. One is binary and another one is multiple. Binary is again are of three types. First is irregular. Second one is longitudinal and third one is transverse. Binary fission occurs mainly in unicellular organisms like amoeba, protozoa and various different types of like paramecium, leishmania, euglena. All these organisms have the binary fission as the mode of asexual reproduction. Whereas during the multiple binary fission, one parent cell is divided into many daughter cells at one single time. Okay. Here from one parent cell, numerous daughter cells are produced. In this, we have to study about the plasmodium that is using multiple fission as a mode of reproduction. Another, or we can say, amoeba is a exceptional case that reproduce through binary fission as well as through the multiple fission. Normally, it reproduces through the binary fission, but in unfavorable condition, when cyst is developed over it, then it reproduces by means of multiple fission. Budding is very important as per examination point of view, and we can say all these topics are very important as 1 or 2 marks questions are arised from here. Budding. In budding, we have to study two organisms. There, one is unicellular, that is yeast, and another one is multicellular, that is hydra. A bud is formed during this type of
asexual reproduction, which grow while remaining on the parent body, and when it fully grown, it becomes detached from the parent body and develop as a new individual. Next is fragmentation. Fragmentation means when a body is divided into different pieces. When these pieces find a suitable medium, it grows itself into a new individual. This process is termed as fragmentation. Here we are going to study about the Spirogyra. Spirogyra is a filamentous green alga that reproduces by means of fragmentation process. Regeneration. Actually, regeneration is not a true form of asexual reproduction. It is just a method due to which an organism can repair its injured part, or we can say it obtain its lost part again by means of some regenerative cell, that is totipotent cell. During regeneration, we have to study about the planaria and hydra that are used to reproduce by this means. Next is spore formation. Spores are minute unicellular objects that are just similar to seed of a plant. They are grown and mature inside the sporangium of fungi, and from there it spread out, or we can say disperse out to different parts over the suitable medium and then grow over it. Vegetative propagation. Vegetative propagation means the production of new young one by using vegetative part. Mainly vegetative propagation occurs in plants where vegetative parts like stem, roots and leaves are used for the production of or the growth of new individual from the parent plant. The first type of asexual reproduction that we have to study is fission. Fission are of two types, binary fission and multiple fission. Fission, it means when a parent cell divides into two or more daughter cell. First we have to study about the binary fission, where one parent cell divided into two daughter cells. Here bi means two. Okay. This is the process during which an organism whose parent cell divide into two daughter cells. These are of three types. One is irregular, second one is longitudinal, and third one is transverse. As we discussed earlier, that reproduction occurs by means of cell division, where first nucleus divide into two and then cytoplasm divide in along with nucleus. तो फर्स्ट स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस. अब यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, वो किस प्लेन पे हो रहा है, उस प्लेन के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स अलग अलग हो गए हैं. अगर किसी भी प्लेन से मतलब कहीं से भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है पेरेंट सेल में, तो उस टाइप के बाइनरी फिशन को हम कह रहे हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन. अगर किसी पेरेंट सेल में लंबाई में डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उस तरह का जो सेल डिवीजन होता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जहाँ पे साइटोप्लाज्म लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है, दोनों अपने राइट एंगल पे डिवाइड होते हैं. सिमिलरली इन ट्रांसवर्स टाइप ऑफ बाइनरी फिशन, cytoplasm divides transversely whereas nucleus divide longitudinally. तो यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस तरह का बाइनरी फिजन शो करते हैं. इरेगुलर में एग्जाम्पल है अमीबा का, बिकॉज अमीबा एक इरेगुलर बॉडी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है नो डाउट. इसकी जो बॉडी होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, तो कहीं से भी इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है.
और डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस इलोंगेट होने के बाद इस न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और दो न्यूक्लियस बनने के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जब कॉन्स्ट्रिक्ट ज्यादा कर जाएंगे तो धीरे धीरे उनमें क्लीवेज आ जाएगा और इस तरह से दो डॉटर सेल्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये अमीबा का इरेगुलर बाइनरी फिजन इस तरह से शो करना है आपको। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनली में लंबाई में यूग्लिना डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल का वो पढ़ेंगे यूग्लिना का। यूग्लिना भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है। इसमें फ्लैजिला पाई जाती हैं। यहाँ इसका माउथ होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, पर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब हम इसका डिवीजन फॉर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह का शो होने लग जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा इसका। धीरे धीरे जब और ज्यादा डिवीजन होगा और ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा और न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, इसके दोनों सीधे इसके पास मिल जाएंगे, सॉरी फ्लैजिला इसको मिल जाएंगे और ये वापस पूरा क्लीव करके दो यूग्लिना का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो ट्रांसफर्स में पैरामीशियम का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जिसमें पैरामीशियम वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो पैरामीशियम है वो स्लीपर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये माउथ होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होती हैं। इसका न्यूक्लियस, अब पैरामीशियम ट्रांसवर्सली, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और इसका न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा। तो ये जब डिवीजन हो जाएगा तो इस तरह से दो सेपरेट पैरामीशियम बनके तैयार हो जाएंगे। बाइनरी फिशन का इरेगुलर फिशन अमीबा के द्वारा शो हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली जो है वो यूग्लिना के द्वारा शो किया जा रहा है और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा पैरामीशियम का। तो ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इसके डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं कि बाइनरी फिजन का आप एक्सप्लेन करें और एग्जाम्पल बताएं। अनदर टाइप ऑफ फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल कई डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मॉस्किटो द्वारा कैरी किया जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया को कॉज करने के लिए। इट इज अ मलेरियल प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है और ये जो न्यूक्लियस है ये मल्टीपल डिवीजन कर लेता है। मल्टीपल डिवीजन होने के कारण बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है।
जब बहुत सारे न्यूक्लियस का मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो ये न्यूक्लियाई इनको सपोर्ट करने के लिए सेल एपरेटस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो उस दौरान ये जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, सेल की पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से। और जब ये पेरिफेरी पे शिफ्ट होते हैं तो ये अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये साइटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेते हैं तो एक मास के रूप में एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बर्स्ट हो जाती है और जितने भी न्यूली डेवलप्ड सेल्स होते हैं वो आउटर मीडियम में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ये एक नए इंडिविजुअल के रूप में तैयार हो जाते हैं। और जब सेल बर्स्ट होता है तो ये जो सेल्स हैं ये पूरे नए सेल्स के रूप में बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है वो मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था जो अमीबा है उसमें एक एक्सेप्शन है, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर रहा है और मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें अमीबा सस्टेन नहीं कर पाता उस दौरान वो अपने ऊपर एक हार्ड कवर बना देता है और इस हार्ड कवर को बोलते हैं सिस्ट। जब ये सिस्ट बनाता है वापस से फेवरेबल कंडीशन की तरफ मूव करता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। उस कंडीशन में अंदर ही अंदर न्यूली अमीबा बना लेता है, न्यू यंग वंस बना लेता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इसका सिस्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे अमीबी जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो अमीबा यहाँ पे एक्सेप्शनल एक केस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग जो प्रोसेस है इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल एक पर्टिकुलर पार्ट पे अपना साइटोप्लाज्म कलेक्ट करना शुरू कर देता है और जिसके कारण एक स्वेलिंग वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है। इस स्वेलिंग को हम बड कहते हैं। तो बड की फॉर्मेशन के कारण इसका नाम पड़ा है बडिंग प्रोसेस। तो इस बडिंग प्रोसेस में पेरेंट सेल बड का फॉर्मेशन करती है और बड का फॉर्मेशन करने के बाद बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है और पेरेंट सेल पे ही वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जब इसका फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो ये अपने पेरेंट सेल से डिटेच हो जाता है और एज अ न्यू इंडिविजुअल सर्वाइव करता है। When it becomes mature, then again it forms new young one by means of budding process. तो वेरी क्विक प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा न्यू वन प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमेट फॉर्मेशन में टाइम वेस्ट होता है, ना फर्टिलाइजेशन में टाइम वेस्ट होता है, ना जाइगोट फॉर्मेशन में, ना जाइगोट से न्यू वन बनने में, सीधे इसमें न्यू वन बन जाते हैं। तो कम समय में ये रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट को हम पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। तो ईस्ट कैसे बडिंग मेथड शो करता है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जब ये बड बनाता है तो इसमें एक तरफ आउटग्रोथ निकलने लग जाती है, इस तरह से इसको हम कहते हैं बड। बेटा आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये डायग्राम समेत आते हैं, इनमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और कई बार ये कंडीशन रख दी जाती है कि यू हैव टू लेबल दिस डायग्राम, आपको इन डायग्राम को लेबल करना पड़ेगा। लेबलिंग के हाफ ऑफ मार्क्स अलग से डिसाइड कर दिए जाते हैं। अगर आप लेबल करना भूल जाओगे, छोड़ दोगे तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो लेबलिंग पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपने पेरेंट सेल लिख दिया, ठीक है, और इसको आपने बर्ड शो कर दिया। बर्ड को आप मल्टीपल बर्ड भी बता सकते हैं, क्योंकि जब ये बर्ड बड़ी हो जाती है तो दोबारा अपने अंदर एक स्वेलिंग बना लेती है, जिसके कारण यहाँ पे मल्टीपल बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। तो जैसे जैसे ये बर्ड बड़ी होती जाएगी तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी, ये अपने पेरेंट सेल से डिटेच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो ईस्ट में प्रोसेस हो गई।
अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है। इसमें टेंटिकल्स होते हैं और एक ये बेस पे जाके चिपक जाता है, जिसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं, और वहां पे ये ग्रो करता है। ठीक है, इसके टेंटिकल्स होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। बॉडी के किसी भी पार्ट में, जरूरी नहीं है एक जो पेरेंट सेल है उसमें एक ही बर्ड बने, मल्टीपल बर्ड्स भी यहाँ पे बन सकती है। तो मान लीजिए इसके किसी एक पार्ट में डेवलपमेंट शो हो रही है, बर्ड बन रही है, तो वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगी। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं टेंटिकल्स है, ये पेरेंट बॉडी है, ये न्यू बर्ड है। ठीक है, इसमें भी आप लेबलिंग करके दिखा सकते हैं। फिर जब ये बर्ड पूरी बन जाती है, इसमें से टेंटिकल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं और ये फुली डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद ये डिटेच हो जाएगी और एज अ न्यू पेरेंट वर्क करेगी, न्यू इंडिविजुअल के रूप में वर्क करेगी। और आफ्टर फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट अगेन स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग बाय मीन्स ऑफ बडिंग। तो यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड बर्ड आप बता सकते हैं, और यहाँ पे न्यू बर्ड, या यूँ कहेंगे न्यू इंडिविजुअल बर्ड निकलेगी इसको। तो इस तरह से आप लेबलिंग करके इस मेथड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें पढ़नी है वो है फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में जो पेरेंट इंडिविजुअल है वो कहेंगे किसी कारण से अगर कट हो गया है, तो वो हर एक कटेड पार्ट से अपने आप को फुली डेवलप कर सकता है। तो यहाँ जब कटेड पार्ट बनता है तो उससे जब न्यू ऑर्गेनिज्म उसी तरह का प्रोड्यूस होता है, तो वो ऐसा सेपरेट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करने लग जाता है और सर्वाइव करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कटेड पीस से न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है बाय मल्टीपल डिवीजन, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा एक फिलामेंट शेप का है, फिलामेंटस ग्रीन अलगा है, जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है। कई बार वाटर का फ्लो है, वाटर की स्ट्रीम बहुत ज्यादा फोर्सफुली होती है, जिसके कारण ये एल्गी के जो फिलामेंट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये फिलामेंट पानी के साथ फ्लो करते हैं। जब इनको प्रॉपर सुटेबल मीडियम मिलता है तो वहां जाके ये अटैच हो जाते हैं और इसके जो पीसेस हैं वो फुल इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हर एक पीस से एक नया अलगा बनके तैयार हो जाता है। तो इसको भी आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। आप इस तरह से बॉक्स बना के फिलामेंट बना सकते हैं इसके और शो कर सकते हैं। बहुत इजी है इसके डायग्राम बनाना। अगर हम इसको पीसेस में ब्रेक करें, मान लीजिए एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, तो इसके 3 पीसेस बन जाएंगे और हर एक पीस फिर सेपरेटली ग्रो करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यू एल्गा। तो हर एक पीस के न्यू एल्गा बन जाएंगे। ये इसके सेल्स हैं जो मल्टीपल डिवीजन से वापस से डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें सेल्स डिवीजन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर लेते हैं।
ओके, इससे ही मिलती जुलती नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो रीजनरेशन है। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो रीजनरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीजनरेशन जो है ये क्या है, फॉल्स एसेक्सुअल मेथड है। इसको हम रियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड में काउंट नहीं करते हैं, और इसका कारण ये है क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल अपने इंजर्ड पार्ट को रिपेयर कर सकता है या लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर सकता है। पर कुछ एक स्मार्ट इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के मेथड को यूज कर रहे हैं अपने रिप्रोडक्शन में। जो भी लॉस्ट पार्ट या कटेड पार्ट होता है, अगर उसमें स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है, इन टोटिपोटेंट सेल में रीजनरेटिव पावर होती है जो कि न्यू सेल फॉर्मेशन करके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर किसी पार्ट में वो टोटिपोटेंट सेल्स नहीं है तो वो पार्ट एज इट इज रह जाएगा, वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं करेगा। मेन डिफरेंस इसका यही है कि रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड टोटिपोटेंट सेल की जरूरत पड़ती है, रीजनरेटिव सेल की जरूरत पड़ती है, पर फ्रेगमेंटेशन में इस तरह की कोई भी सेल की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ सेल डिवीजन की मेथड से फ्रेगमेंटेशन में न्यू यंग वन या न्यू डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पर रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड रिजनरेटिव सेल से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। दोनों प्रोसेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। ये फ्रेगमेंटेशन लोअर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और रीजनरेटिव पावर थोड़े से हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पर यूं कहेंगे, ज्यादा हायर नहीं, मिड वे में जो है, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, लिजार्ड में भी देखा जाता है, स्टारफिश हो गया, स्पेशली प्लेनेरिया और हाइड्रा जो आपके बुक में भी है, वो इन सब के एग्जाम्पल है। लिजार्ड को हम यूं नहीं कह सकते कि ये रिप्रोडक्शन में यूज कर रहा है। लिजार्ड में जो टेल टूट के गिर जाती है तो वो टेल दोबारा से बन जाती है, मतलब लिजार्ड में रिजनरेटिव पावर है कि वो अपनी टेल को दोबारा डेवलप कर सके, पर टेल में रिजनरेटिव पावर नहीं है कि वो दोबारा से लिजार्ड बन सके। तो यहाँ पे लिजार्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रिप्रोडक्शन मेथड नहीं कहेंगे। स्टारफिश में आप कह सकते हैं कि इन सम केसेस कि जो स्टारफिश की आर्म टूट जाती हैं तो वो वापस से रिजनरेट हो जाती हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा अमाउंट में अगर स्टारफिश कट हो जाती है तो वो अपने नए पूरे रूप को अगेन रिगेन कर लेती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती है। तो हम रीजनरेशन में एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्लेनेरिया का एंड हाइड्रा का। इसके दो एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया जिसे प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, और हाइड्रा। हाइड्रा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया कुछ इस तरह का दिखता है, प्लेटफॉर्म होता है ये। अगर मान लीजिए ये 3 पार्ट पीसेस में कट हो गए हैं और हर एक पार्ट में रीजनरेटिव पावर है, तो वो अपने दूसरे पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से प्लेनेरिया का डायग्राम बना के आप शो कर सकते हो। सिमिलरली हाइड्रा का भी आप शो कर सकते हो। हाइड्रा बनाइए, उसमें कट शो करिए और हर एक कटेड पार्ट को वापस से एक इंडिविजुअल के रूप में दिखा दीजिए। तो ये हो गया रीजनरेशन और आपका फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस।